Hello everyone. My name is Dinesh Rajpuri. I've done my BTech from Indian School of Mines, Dhanbad, ISM Dhanbad, IIT Dhanbad, and I've done previously three jobs. Firstly, I was doing job in Coal India Limited, then as an auditor through SSC CGL in Ministry of Defence. Then I was selected as IB ACIO Grade 2, and presently I'm selected in RS 2018 batch. So today we will discuss about the Economic Survey of Rajasthan, which is very relevant, very important document with regarding to every competitive एग्जाम ऑफ राजस्थान, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरएस से लेके पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, सब में इकोनॉमिक सर्वे का जो पोर्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पार्ट है वो इसमें से आता है. सो विल स्टार्ट द इकोनॉमिक सर्वे. सो लेट्स स्टार्ट. Wait a minute. Yes. So here we will be discussing the Rajasthan Economic Survey 2021-22 with Yatharth IS. So let us start discussing in brief. The first chapter is the summary or like an overview. ये एक summary की तरह, एक overview की तरह होगा जिसमें पूरा economic जो survey है हमारा उसका पूरा सार इस पहले चैप्टर में दिया जाता है और एवरी सेक्टर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा. फिर ब्रीफली जितना भी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दिया गया उसको आगे डिटेल में समझाया गया. बट वी विल पॉइंट आउट दोज फैक्ट्स, दोज लाइंस जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है. एंड दिस समरी चैप्टर इज वेरी रिलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट टेबल जिसमें जो इम्पोर्टेंट डेटाज है which are given. So let us see from this table. The first data is state GSDP, gross state domestic product 2020-21 and 21-22 का जितना हो गया है that data is given. So अगर ये वाला डेटा ना याद रहे तो it's not a big deal, but this data we have to remember exactly. Current prices पे भी और constant prices पे भी. The constant prices are calculated making the base year 2011 and 12. 2011-12 को बेस रख के constant prices calculate किए जाते हैं. ये 733017 exactly we have to remember this data. And the current prices पे जो हमारा GSDP है वो 119637 है. ये हमें exactly याद होना चाहिए because the trend of questions they are asking in pre, they will directly ask the value. सो स्टेट जीएसडीपी जो है उसका जो परसेंटेज रेट है दैट इज 11.04% पॉजिटिव रेट है इसका ग्रोथ करने का एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड एट करंट प्राइसेस इट्स 18.04. सो दिस इज वेरी रिलेवेंट डेटा. 18.04 जो हमारा स्टेट जीएसडीपी है. अब उसमें दे विल एग्जैक्टली गिव यू कि आपसे स्टैटिक पूछ रहा है या करंट स्टेटस पूछ रहा है. सो इन दोनों को आपको एग्जैक्टली डेटा के साथ याद रखना है और किस सेंस में पूछा जा रहा है ये भी हमें याद रहना चाहिए. देन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इन तीनों की जो ग्रोथ रेट है वो किस प्रकार से रही है, ये तीनों की ग्रोथ रेट है. वी हैव टू रिमेंबर दिस डेटा. दैट इज एग्रीकल्चर इज 28%, इंडस्ट्री इज 26%, सर्विस जो हमेशा ऑब्वियसली दैट स्टैंड फर्स्ट. So they will ask directly कि which sector is first and which sector is second and third with respect to the percentage of their development in state GSVA. So in service is at the first position with 44% of growth. Agriculture is at second position. Industry is at third position with 26%. And this is at constant prices and this is as current prices. Current prices पे ये तीनों अपना रहेगा. The ranks are same, like this is first, this is second and this is third, but we have to remember the exact values. 28.85 तो आप कैसा भी ट्रिक आजमाते हैं आप पे डिपेंड करता है, पर ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए because they will ask directly in exam with options. Then this is net state domestic product at constant prices and current prices. So if you remember this data, this is very good. If you can't remember, it's okay, but you have to remember the state GSTB.
स्टेट एस जीडीपी जो डेटा है वो याद रखना चाहिए, एनएसडीपी याद रहे तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं रहे तो इट्स ओके। देन दिस पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है ये हमने को याद रखनी है, बिकॉज प्रीवियसली आरएस के एग्जाम्स के भी और अदर एग्जाम्स में भी इसका डेटा जो है एग्जैक्ट पूछा गया है। They will ask in these options, or they will insert this data in multiple option type of statement. So उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता रहे। तो इसमें 81,231 कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे है और 1,35,218 एट दी करंट प्राइसेस। सो दिस डेटा वी हैव टू एग्जैक्टली रिमेंबर कि जो पर कैपिटा इनकम है हर आदमी की एनुअल इनकम राजस्थान की ये है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। सो वी हैव टू एग्जैक्टली रिमेंबर दिस डेटा। देन this, so gross fixed capital formation current prices, this is dash dash। हाँ, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, अब देखिए फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 269 मिलियन टन्स आई थिंक इसकी यूनिट होनी चाहिए, अब 225 हो गया है। तो वी कैन इजीली सी कि अब क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुआ है, जब हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्टली जो डेटा है ये दे रखा होगा कि कितने परसेंटेज से कम हुआ है, कि वो भी हमें याद करके रखना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है IIP कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। वी हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स इन दिस। इसका बेस ईयर कितना है, 2011-12 इसका बेस ईयर है। अभी इसका इंडेक्स कितना है, 131, इसका अप्रोक्सीमेटली 131 इसका इंडेक्स है। ये दोनों डेटा हमें एग्जैक्टली दिस टेबल इज वेरी रिलेवेंट, हमें इसके जो डेटा है वो एग्जैक्टली याद रखने हैं, बिकॉज दे आर आस्क्ड डायरेक्टली इन द एग्जाम। WPI और CPI का जो इंडेक्स का डेटा है वो भी हमें याद रखना है, और इसका जो बेस ईयर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 1999 और 2000 का जो बेस ईयर है WPI का है, CPI का भी जो बेस ईयर है 2016 चल रहा है। अभी CPI इस होलसेल की जो है इसकी 3 बास्केट रहेगी, उसके बेस पे ये निकलता है। अभी हम जब आगे जाएंगे तो इसको ब्रीफ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से निकल के आता है। परसेंटेज चेंज हमें याद रखना है कि अब 9.27 की इसमें ग्रोथ रही है। देखिए 377 था और 369 हो गया, तो इसकी ये परसेंटेज ग्रोथ जो है 9.27 रही है। इंस्टॉल कैपेसिटी वी हैव टू रिमेंबर एग्जैक्ट 23321 मेगावाट, 23321 मेगावाट, बिकॉज ये काफ़ी एग्जाम्स में एग्जैक्टली पूछ लिया गया है कि राजस्थान की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है, तो ये हमें एग्जैक्टली याद रहनी चाहिए। Commercial bank credit, this data is not very relevant with respect to exam. If you can avoid, you can avoid. Then अब राजस्थान का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू है कि किस तरीके से जीडीपी इंडिया का कितना है, राजस्थान का कितना है, राजस्थान का पार्ट इसमें कितना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दिस डेटा बिकॉज दे आर आस्क्ड वेरी डायरेक्टली, वेरी सिंपल फॉर्मल क्वेश्चंस आ रहा है, उसमें आपको याद है तो इट्स ओके, अगर आपको याद नहीं है तो यू विल मिस आउट द क्वेश्चन। साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अराउंड 232 लाख करोड़ रुपीज, उसमें से राजस्थान का जो साइज है दैट इज 11 लाख करोड़ रुपीज। हमें ये नहीं याद रखना है कि राजस्थान का या इंडिया का कितना लाख रुपया का जीडीपी है, दे विल नॉट आस्क एग्जैक्टली अबाउट दिस, बट दे विल आस्क कि राजस्थान को जो स्टेट जीएसडीपी है वो इंडिया का कितना परसेंटेज है। सो दिस इज 5.15%, ये हमें एग्जैक्टली याद रहना चाहिए। दिस इज द डेटा वी हैव टू रिमेंबर। नाउ अभी हम लोगों ने जो पिछले वाला टेबल देखा उसमें हमने देखा कि जो स्टेट जीएसडीपी है उसका कांस्टेंट रेट पे प्राइसेस पे कितना ग्रोथ रहा है, 11.04। द रिस्पेक्टिव करस्पेंडिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 9.02। सो इंडिया को तो याद रखना ही रखना है, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पर राजस्थान का 11.04 ये जो है एट कांस्टेंट प्राइसेस जीएसडीपी का ग्रोथ है, ये हमें याद रहना चाहिए। देन पर कैपिटल इनकम अभी हमने राजस्थान का देखा 1,35,218 रुपये है, एंड इंडिया का ही अगर ये देखा जाए तो 1,50,000 है। एक फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन राजस्थान, बट दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इंडिया का क्या है ज्यादा है। देन दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमारे स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर्स बताए गए हैं, इसमें इंडिया और राजस्थान का दोनों का कंपेयर करके बताया गया है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुली
प्रोजेक्टेड, इसको हमें देखने में समझने में भी बहुत काफ़ी आसानी रहेगी। लिटरेसी रेट हमारा इंडिया का 73% है, राजस्थान का 66%। ये एग्जैक्ट डेटा हमें याद रहना चाहिए, इसमें कोई तोल मोल या आगे पीछे की बात नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। बर्थ रेट 19.7 दैट इज पर 1000 पॉपुलेशन, राजस्थान का इंडिया से ज़्यादा है दैट इज 23.7। वर्क पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का 39 पॉइंट है बट राजस्थान का 43.6 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो राजस्थान से ज़्यादा है, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज राजस्थान एज ए स्टेट का इंडिया एज ए नेशन से ज़्यादा है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जैसे एरिया पॉपुलेशन, तो एरिया का 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का, एटलीस्ट ये हमें याद होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट। पॉपुलेशन भी दिस इज नॉट ए बिग डील, ये डेटा कोई भी जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें पता है कि ये एक बेसिक डेटा है, हमें याद रहना चाहिए। देन दिस इज हाँ, अब सेक्स रेशियो जो इंडिया का है वो 943 है और राजस्थान का 928 है। एग्जैक्टली याद रखना है, इसमें और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एंड ये सबको पता है कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स दैट इज कैलकुलेटेड एज ए सेक्स रेशियो, ठीक है। एंड जो चाइल्ड सेक्स रेशियो और अदर सेक्स रेशियो वो भी आगे टेबल में आएंगे, वो भी हम देखेंगे। राजस्थान का 888 है, काफ़ी कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो। और इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की याद रहे ना रहे इस नॉट ए बिग डील, पर राजस्थान की अभी जैसे मैंने कहा 23,321 मेगावाट एग्जैक्टली वी हैव टू रिमेंबर। और ये भी अब इसमें जैसे कोल की है, सोलर की है, विंड की है, अलग अलग सेक्टर्स की इसमें पावर कैपेसिटी है, वो भी हम आगे देख लेंगे कि किस सेक्टर की कौन सी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उस हिसाब से हम इसको रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। रोड डेंसिटी इंडिया की 161 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर है, राजस्थान की अप्रोक्सीमेटली 80 या 79.76 के पास है। पोस्ट ऑफिस का डेटा नॉट as such important from exam point of view, telecom subscribers not as much important from exam point of view. Now अब हम स्टेट की जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा देखेंगे ताकि हम एक ओवरव्यू ले पाए इस सर्वे को आगे बढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए। जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसे रिमेंबर करना हमारे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ श्योरली वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट वेरी सीरियसली। जो डेटा मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ या स्पेसिफिकली जोर दे के बोल रहा हूँ उसको आपको याद रखने की कोशिश पूरी तरीके से करनी है। देन द फर्स्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स हम बात कर चुके हैं कि इसका जो बेस ईयर है वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव में 1999-2000 है। ये काफ़ी एग्जाम्स में भी आ चुका है, इसलिए हम इसको इतना फोकस कर रहे हैं। इंडिया का जो बेस ईयर है 2011 है। इसमें 3 एक्चुअली बास्केट्स है, प्राइमरी आर्टिकल्स का है, फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट्स का, और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का है। इन तीनों बास्केट्स को हम इसके इंडिकेटर्स यूज़ करके और इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम इसके जो अभी हमने टेबल डिस्कस किया है उसमें भी देख चुके हैं कि इसका 363.23 इस साल का ये डेटा है। और पिछले साल के कंपैरिजन में 2020 के कंपैरिजन में 2021 का अगर WPI डेटा देखेंगे तो उसकी जो परसेंटेज रेंज बढ़ने की है वो 9.78% हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि WPI कितने परसेंटेज से इंक्रीज किया, दैट इज 9.78%। और CPI के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 3-4 प्रकार के CPI है। इंडस्ट्रियल वर्कर का है, रूरल एग्रीकल्चर वर्कर का है, रूरल एरियाज का है। वो जब हम इसका चैप्टर आएगा तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। बट राजस्थान में इसका जो बेस ईयर है दैट वी आर टेकिंग इट एज 2016। और पहले अलवर की जगह यहाँ अजमेर हुआ करता था। अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर का CPI इंडेक्स अलग से निकाल के हम कैलकुलेट करते थे ताकि एक डेमोग्राफी के हिसाब से डेमोग्राफी भी कवर हो जाए और हमें इसका आइडिया भी लगे। अब अजमेर की जगह इसको अलवर कर दिया गया। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर का हम जो डेटा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर इसका रेट देखा जाए तो अलवर के अंदर में 5%, 3.9% इसमें और 2.6% जयपुर में। ये CPI का जो डेटा है इसमें इंक्रीज हुआ है। तो दिस डेटा इफ यू कैन रिमेंबर
वेल एंड गुड। अगर नहीं भी रहे तो दिस इज नॉट, मेरे आइडिया से ये एग्जैक्टली इसका नहीं पूछेंगे, बट इज इम्पोर्टेंट डेटा। देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है मॉनसून या फिर रेनफॉल। मॉनसून रेनफॉल, मॉनसून रेनफॉल में अगर हम राजस्थान का देखें तो पूरे राजस्थान में गंगानगर और सिरोही ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर सामान्य से जनरल जो हमारी रेनफॉल होती है उससे ज़्यादा रेनफॉल इस मॉनसून में एक्सपीरियंस की गई है। तो गंगानगर और सिरोही को हमें याद रखना है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में एवरेज रेनफॉल से कम रेनफॉल आई है। अब जो सामान्य हमारी वर्षा है उसका क्या डेटा है, 41.450.50 mm। ये हमारी जनरल एक लिमिट है जहाँ पे जितनी रेनफॉल हमारे यहाँ पे होती है। बट इस बार जो मॉनसून की रेनफॉल है लगभग 17.10% की इसमें इंक्रीजमेंट रहा है। और गंगानगर और सिरोही दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये कम रही है।